एकोमोडेशन ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये टॉपिक को हम लोगों ने पहले भी देखा है 12th स्टैंडर्ड में। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, दो टाइप के बिल होते हैं। नंबर वन, देयर इज अ ट्रेड बिल। नाउ देयर इज अनदर टाइप we are going to see, known as accommodation bill. Now, those who have learned 12th standard, they must know what is trade bill. Let's take an example. Suppose there is one party who is a seller of particular goods, who is a seller. Being a seller, he wants to always sell his goods. Now, there is another person who wants to buy goods from this seller. He wants to buy goods from seller, but he wants to buy those goods on credit. Very important thing. He wants to buy the goods on credit. Now seller is also willing to sell the goods on credit, but he want to ask the buyer, this party who is a buyer of the goods, that what is the guarantee. He needs some assurance. Seller needs some assurance about is going to receive the money. Buyer said, I'll give you money after 3 months. So seller says that for an assurance, let us draw a bill. So seller draws a bill on buyer. Once he draw the bill, we call him as drawer, and on whom the bill is drawn is known as drawee. This bill, which is drawn to support the transaction of sale or purchase of goods on credit, this bill is drawn. It is known as trade bill. It is known as what? Trade bill. Now we everyone know that if you have learned the trade bill earlier, then you should know that the drawer has got option with this bill. He can discount the bill, he can keep the bill with him, and after 3 months, that in this case I said buyer is going to give the amount after 3 months. So bill is of 3 months. Okay. So after 3 months, drawer will go and ask the money from the buyer. Okay. This is called as trade bills, all the arrangements. So with this trade bill, drawer can do four things. He can keep the bill with him till the due date, and on due date he may ask the money from the buyer, or he may, if he want cash early, then he can discount the bill, or he may transfer it to his creditor, or sometimes to for the collection he may send it to the bank. Okay, similar way drawer may honor dishonor, that things happen in the trade bill. But what is accommodation bill? What is accommodation bill? Let's see that. Accommodation bill, actually it is an arrangement. Bill ही होता है. It look similar to the trade bill. No distinction in bill drafting and everything. Here there is a drawer and drawee. In accommodation bill also drawer and drawee is there. Both the parties are there. Bill will look like same as trade bill, but what is the difference between trade bill and accommodation bill? See, accommodation bill जो होता है trade bill से different होता है. कैसे? Let's take an example of accommodation bill. Let us say, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे भी एक पार्टी है. Let us say there is one person. Okay, this person want cash. क्या चाहिए इसको? Cash चाहिए. Means some money, need fund for something, for business or something else, like let's say. So he need cash, he need money. Okay, so what he does, he goes to his friend
maybe business friend or other family friend, whatever it is, probably goes to the business friend. In this case, okay, this person is a friend of the person who needs cash. Okay, ये पर्सन जो है अपने दोस्त से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। अब दोस्त बोलता है मेरे पास भी पैसे है नहीं। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि लेट्स डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे एक ऊपर एक बिल ड्रॉ करता, आई बिकम द ड्रॉवर। मैं क्या बन जाता हूँ? ड्रॉवर। और तुम बन जाओ मेरे ड्रॉवी। क्या हो जाएगा इससे? मेरा काम बन जाएगा, वो बोला। तो इसने पूछा कैसे काम बनेगा? लेट्स डू दिस थिंग। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ करता हूँ, तुम वो एक्सेप्ट कर लेना। वो बोलता है लेकिन ये तुम्हारे फायदे में कैसे आएगा? तो ये क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है और बी फ्रेंड है वो उसका, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। सो यर ये बिल ड्रॉ करके, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। सो देर इज अ बिल, देर इज अ बिल। ओके, जो भी इसको अमाउंट रिक्वायर्ड था उतना या उससे थोड़ा ज्यादा ये बिल ड्रॉ करता है अपने फ्रेंड के ऊपर, फ्रेंड उसको एक्सेप्ट भी करता है। ना एज वी नो कि बिल जो होता है, एंड मैंने आपको बताया कि ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता है कि ये ट्रेड बिल है या ये अकोमोडेशन बिल है। तो कोई भी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है कि अकोमोडेशन वाला बिल है या ये ट्रेड वाला बिल है। सारे बिल एक जैसे ही दिखते हैं। तो ये जो ड्रॉवर है ये क्या करता है, बैंक के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? बैंक के पास। ड्रॉवर के पास बिल आने के बाद ड्रॉवर बैंक के पास क्यों चला जाता है? दो रीजन है। एक तो डिस्काउंटिंग कराने के लिए, अगर उसको पैसों की जरूरत है, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस टू द ड्रॉवर, डिस्काउंटिंग कराने के लिए, या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का केस नहीं, ये ड्रॉवर चला जाता है बैंक के पास वो बिल लेके। जो उसके पास बिल है, जिस फ्रेंड ने उस एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल लेके चला जाता है और वो बिल अपने बैंक को देता है। ओके, अपने बैंक को बिल देता है। हम्म, बदले में बिल डिस्काउंट, यहाँ पे मैं बिल डिस्काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बदले में उसको क्या मिलेगा? कैश। बदले में उसे मिलेगा कैश। तो इस तरीके से वो अपना काम बना लेता है। ओके, सो दिस अरेंजमेंट, ये जो बिल है, जैसे लाइक यहाँ पे ये बिल जो है इट वाज सपोर्टेड बाय द ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन था क्या? नहीं। यहाँ पे गुड्स क्रेडिट पे बेचे गए थे। दैट मीन्स ये जो सेलर था वो क्रेडिटर था, बायर का क्या था? वो क्रेडिटर। ही वॉज द क्रेडिटर। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था पहले। कभी भी ड्रॉवर ड्रॉवर बनने से पहले, ड्रॉवर ड्रॉवी बनने से पहले, ट्रेड बिल में दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है, वो यहाँ पे था। बट ऐसा कुछ था क्या? नहीं। यहाँ पे क्या है, जस्ट इसको जरूरत है कैश की, वो अपने फ्रेंड को अप्रोच किया, बोला मैं बिल ड्रॉ करता हूँ तो एक्सेप्ट कर ले, मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से कैश ले लूंगा। ओके, सो ये टोटल अरेंजमेंट बाद में क्या होगा? सी दिस इज कॉल्ड एज, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंटिंग। ओके, यहाँ पे बिल उसने डिस्काउंटिंग कराया। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। बाद में क्या होगा? ड्यू डेट के दिन बैंक किसके पास जाएगा? फ्रेंड के पास, और उससे पैसा मांगेगा। तो इसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? फ्रेंड ने बिल एक्सेप्ट किया तो ड्यू डेट के पहले जो भी कैश इसने बैंक से लिया था, बिल का जो अमाउंट है वो अमाउंट अपने फ्रेंड को दे दे, है ना? आगे चल के ये एग्जांपल में डिटेल में हम लोग देखेंगे, जस्ट ओवरऑल बता रहा हूँ। तो ये जो अरेंजमेंट है कैश कलेक्ट, कैश अरेंज करने का, इसको जरूरत थी उसने कैश अरेंज करने के लिए, जो इस बिल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन मीन्स सम कॉम्प्रोमाइज करना, सम अरेंजमेंट करना, है ना? तो इसने क्या किया? अरेंजमेंट किया। किस चीज के लिए? ही वांटेड कैश, पैसा चाहिए था उसको। तो अपने दोस्त को पकड़ा, बोला तो भाई तू कुछ मत कर, खाली तू ड्रॉवी बन जा 3 महीने के लिए,
है ना, मैं एक बिल ड्रॉ करता हूँ, बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दे, मैं बैंक के पास जाऊंगा, पैसा ले लूंगा, और 3 महीने जो ड्यू डेट आएगी उसके पहले मैं तुझे पैसा दे दूंगा, वो पैसा तू बैंक को दे देना, बिल ऑनर कर देना। दिस इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन ऑफ बिल। ओके, अब ये दोनों बिलों में डिफरेंस क्या होता है? देयर इज वेरी सिंपल डिफरेंस। कि पहला तो डिफरेंस हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ट्रेडिंग बिल जो होता है, ट्रेडिंग बिल, वहां पे ट्रेड एक्टिविटी के वजह से होता है। ट्रेड एक्टिविटी यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, बट एकोमोडेशन बिल में ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो एकोमोडेशन बिल जो होता है ड्रॉ किया जाता है फॉर रेजिंग फाइनेंस, फॉर रेजिंग व्हाट, फाइनेंस। डेटर क्रेडिटर वाली रिलेशनशिप होती है क्या यहाँ पे? नहीं होती है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बता, अच्छा एक बात मैंने आपको बताया कि इसमें एक सिमिलैरिटी है कि भाई बिल आप पहचान ही नहीं सकते कौन सा एकोमोडेशन बिल है, ट्रेड बिल है, बैंक को नहीं पता चलेगा। ओके, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डिसिमिलैरिटी है यानी डिफरेंस है, दैट इज ट्रेड बिल कैन बी लीगली एनफोर्स्ड। मतलब लीगली एनफोर्स मतलब क्या हो गया कि अगर अगर ड्रॉवी ने यहाँ पे पैसा देने से मना कर दिया 3 महीने के बाद, तो हम लोग को पता है, हम लोग उसका नोटिंग कराते हैं, फिर इसके ऊपर लीगल केस भी करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, तो लीगली एनफोर्सिएबल है। ट्रेड बिल जो होते हैं वो लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं। बट बट ये जो एकोमोडेशन बिल होते हैं इसमें कोई सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है, और कुछ ये नहीं होता है, तो इसके लिए दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो एकोमोडेशन बिल होते हैं दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। मतलब इवन इफ ड्रॉवी बैंक को पैसा देने से मना करे तो बैंक ड्रॉवी के पीछे नहीं लगेगा, या ड्रॉवर ड्रॉवी के पीछे जाके पैसा नहीं मांग सकता है, क्योंकि ये एक जस्ट अरेंजमेंट थी जहाँ पे फ्रेंड ने हेल्प किया है ना। दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। अगर लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इसमें नोटिंग चार्जेस भी नहीं आएंगे, है ना। तो एग्जैक्टली ये जो एकोमोडेशन ऑफ बिल होता है ये काम कैसे करता है वो हम लोग देखने वाले हैं अभी अलग अलग एग्जाम्पल्स है। लेकिन ये होता है एकोमोडेशन बिल जहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है। बेसिकली इसको कुछ है ना फॉर्मल सॉरी इनफॉर्मल नेम्स भी हैं। इनफॉर्मली दिस एकोमोडेशन बिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइट। एकोमोडेशन बिल को क्या बोला जाता है? काइट। एंड जब आप उसका डिस्काउंटिंग कराते हो, जब उसको आप डिस्काउंटिंग कराते हो तो उसको बोलते हैं काइटिंग। ओके, फ्लाइंग काइट और काइटिंग यू कैन से, इसको बोला जाता है। अदर वे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंस बिल, बट आई डोंट टू यूज दैट वर्ड बिकॉज फाइनेंस बिल हम लोग कॉमर्स में कहीं और भी यूज करते हैं, तो ज्यादा इसको काइट बोला जाता है। एंड व्हेन यू से डिस्काउंटिंग करा है तो उसको बोला जाता है कि काइटिंग। नाउ लेट अस से, ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था जहां पे जरूरत थी, लेकिन ये इतना ही नहीं, एकोमोडेशन बिल को अलग अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो कौन से तरीके हैं जिससे इसको यूज किया जा सकता है, लेट अस सी, है ना। ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि जब किसी को जरूरत होती है तो बिल के जरिए बैंक के पास से हम लोग मनी, फंड रेज कर सकते हैं, है ना। अब लेट अस सी द मेथड्स, methods for using एकोमोडेशन बिल। ये जो एकोमोडेशन बिल होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, किस तरीके से और कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, देर आर थ्री possibilities, there are three possibilities actually. Number one, we'll see one by one. सबसे पहली possibility है a bill drawn, a bill means one bill drawn for accommodation
एकोमोडेशन ऑफ ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसके एकोमोडेशन, तो जिसको पैसे की जरूरत है उसको हेल्प करने के लिए. सो एकोमोडेशन ऑफ ड्रॉवर मीन्स टू हेल्प द ड्रॉवर so that drawer can get the money. Okay, a bill मतलब there is only one bill, there is only one bill. So it is simple. जैसे हम लोग का प्रीवियस एग्जांपल था, मैंने इनिशियली आपको एग्जांपल दिया वैसे ही है यहाँ पे. ओके, there is one party who needs cash. Same example, same example, he needs cash. Okay, तो इसने क्या किया, what he did, approach his friend. एक अच्छा फ्रेंड है उसका, बिजनेस फ्रेंड बोलो या कोई भी बोलो, फैमिली फ्रेंड. फ्रेंड को उसने अप्रोच किया. ओके, एंड ही सेड मैं एक बिल ड्रॉ करता हूँ, वो तू मुझे एक्सेप्ट करके दे देना. अकॉर्डिंगली फ्रेंड ने मान लिया और अरेंजमेंट दोनों में हो गई. सो यहाँ पे फ्रेंड एक बिल ड्रॉ करके उसको दे देता है. और एज आई सेड कि ये क्या करेगा, ही विल गो टू द बैंक. उस बिल को लेके वो बैंक के पास जाएगा, क्या करने के लिए, डिस्काउंटिंग कराने के लिए, सो दैट ही कैन गेट द कैश. ओके, सो ये बैंक के पास चला गया, बिल दे दिया. ओके, और दूसरे साइड से इसको कैश मिल गया. नॉर्मली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बोलते हैं. बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू से इट इज काइटिंग और फ्लाइंग काइट. ओके, सो बिल ही गेव टू द बैंक, कैश उसको मिला बैंक के पास से ना. एक छोटा सा क्वेश्चन है. ओके, अगर सपोज द बिल इज ऑफ 10,000, बिल इज ऑफ हाउ मच, 10,000, तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या 10,000 बैंक दे देगी ड्रॉवर को? आंसर इज नो. व्हाई? वी नो डिस्काउंटिंग अगर कराएंगे तो देर विल बी ऑलवेज डिस्काउंट. ओके, सो से 10,000 के बदले बैंक ने 9,800 दे दिया. सो हाउ मच इज द डिस्काउंट? 200. ओके, हाउ मच इज द डिस्काउंट? 200. ओके, he received cash of rupees 9,800 and 200 is a discount. Now on the due date both of them knows कि भाई बैंक आएगा इसके घर पे पैसा मांगने. तो इसकी अभी जिम्मेदारी क्या बनती है, एज अ फ्रेंड उसने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो इसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जिस पर्सन ने कैश लिया था उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि बिफोर ड्यू डेट जो बिल ऑनर करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है, बिल इज ऑफ 10,000, तो 10,000 इसने देना चाहिए अपने फ्रेंड को. सपोज 3 महीने का बिल था, कितने महीने का, 3 महीने का. सो जिस दिन ड्यू डेट आएगी उसके पहले ये क्या करेगा, दिस पर्सन will give cash. When he will give cash, obvious before due date, before due date. How much cash? The amount equivalent to bill amount. Okay, so ये जो बिल का अमाउंट है उतना कैश वो अपने दोस्त को दे देगा, so that the friend can honor the bill. So this way arrangement हो जाती है. और फिर बैंक जाएगी ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट में क्या हो जाएगा, बैंक जाएगी इसके पास बिल लेके, है ना, क्या लेके जाएगी, बिल. एंड बदले में फ्रेंड उसको देगा, मतलब जो जिसके जो ड्रॉवी है जिसने कैश रिसीव किया है वो बैंक को कैश दे देगा. एंड दिस वे ही विल ऑनर द बिल. ओके, दिस विल हैपन ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट. तो इस तरीके से आप देख लेते हो कि जिसको पैसे की जरूरत है उसने 3 महीने तक अच्छे से पैसा यूज किया, और फिर 3 महीने खत्म होने से पहले, ड्यू डेट के पहले अपने उसने दोस्त को 10,000 दे दिया, उसने बिल को ऑनर कर दिया. तो दिस इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एकोमोडेशन ऑफ बिल, जहाँ पे ओनली वन पार्टी वाज इन नीड ऑफ कैश, एक को ही जरूरत थी. ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई अगर इसने पैसा नहीं दिया तो
सिंपल है, इसने पैसा नहीं दिया तो ये डिसऑनर करेगा, डिसऑनर करेगा तो बैंक किसको पकड़ेगी, वापस इसी को पकड़ने वाली है ना, ड्रॉवर को ही पकड़ेगी बैंक, थोड़ी ना ड्रॉवी के पीछे भागेगी, ड्रॉवर को ही पकड़ेगी। वो सारी बातें हैं, बट दिस इज द थिंग। ये अरेंजमेंट, अगर सिंपल तरीके से मैं अरेंजमेंट बताऊँ तो ये अरेंजमेंट होती है, एक तरीका होता है अरेंजमेंट करने का ना, दूसरा तरीका होता है एकोमोडेशन का, हाउ इट इज। तो सेकंड मेथड वी आर गोइंग टू सी, दूसरे इसमें क्या होता है, ओके, देयर इज अ बिल drawn and accepted for the mutual benefits। अब ये क्या है, there is a single bill, a bill is drawn and accepted, a bill means single bill drawn and accepted for mutual benefit। mutual benefit का मतलब है यहाँ पे समझ लीजिए benefit of both the parties, benefit of both the parties, दोनों पार्टी का बेनिफिट होगा। मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज को कैश की जरूरत है। लेट्स सी द दिस थिंग विद द एग्जांपल, ओके। यहाँ पे मैं दो पार्टीज लेता हूँ, आई एम सॉरी, ओके, देयर आर टू पार्टीज, ओके, दोनों भी, दोनों को भी पैसे की जरूरत है, he needs cash, he also needs cash। अब इसमें फ्रेंड रहे या ना रहे, बट दोनों में एक कॉमन है कि भाई दोनों को पैसों की जरूरत है, दे नीड मनी फॉर समथिंग, ओके। अब दोनों एक दिन चाय के टपरी पे बैठते हैं और दोनों में बातचीत होती है, भाई मुझे भी पैसों की जरूरत है, तुझे भी पैसों की जरूरत है। तो इसके दिमाग में एक खुरापते आइडिया आता है, ये क्या बोलता है, लेट्स डू वन थिंग, मैं बन जाता हूँ ड्रॉवर, मैं क्या बन जाता हूँ, ड्रॉवर, और तू बन जा मेरा ड्रॉवी, ऐसा इसको बोलते थे, ओके। तो अकॉर्डिंगली ये बिल ड्रॉ करेगा, ही विल ड्रॉ द बिल, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ओके। ही विल गो टू द बैंक, डिस्काउंट करेगा, और ये जो पैसा आएगा डिस्काउंटिंग करने के बाद वो आपस में बांट लेंगे। तो लेट्स सी दैट कैसे करेंगे। एज यूजुअल इसने बिल ड्रॉ किया और ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके वो बिल दे दिया। इस बार बिल था, सपोज दोनों को जरूरत है, बिल ऑफ ₹20,000, ओके, ₹20,000। नाउ ये बिल इसने दे दिया, ये ड्रॉवर फिर वो बिल लेके कहाँ पे चला गया, बैंक के पास। he went to bank for discounting, उसको दूसरा नाम क्या है यहाँ पे एकोमोडेशन में, तो इट इज नोन एज काइटिंग, ओके। सो बैंक के पास चला गया, वो बिल उसने दे दिया बैंक को। बिल कितने का था, 20,000। बिल कितने का था, 20,000। बदले में बैंक विल गिव द मनी, एंड अभी पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था क्या बैंक पूरा पैसा देगी, नहीं देगी, बैंक विल डिडक्ट सम डिस्काउंट, है ना, बैंक थोड़ा सा डिस्काउंट डिडक्ट करेगी। लेट अस से बैंक ने दिया 19,600, 19,600, एंड डिस्काउंट डिडक्ट किया यहाँ पे लेट्स से 400, 400 डिस्काउंट, 20,000 का बिल था, टोटल बिल ऑफ 20,000, 400 डिस्काउंट माइनस किया तो 19,600। अब इन दोनों के बीच में दोनों को पैसे की जरूरत है, तो इसके पास कैश आया 19,600 डिस्काउंट डिडक्ट करके। तो इन्होंने क्या किया कि ये कैश आपस में बांट लिया, थोड़ा कैश इसको और थोड़ा कैश इसको। जब ये लोग अरेंजमेंट करते थे इनका पहले से ही डिसाइडेड रहता है, बट यहाँ पे लेटेस्ट हम लोग इजी करने के लिए ले लेते हैं कि इन्होंने आधा आधा बांटा। 19,600 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो इट विल बी 9,800, आधा इसको आधा इसको, ठीक है।
9,800, 9,800। और जब ऐसा होता है, एक्चुअली यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो डिस्काउंट है 200 का जो डिस्काउंट है, ये पूरा ड्रॉवर का एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा पूरा उसी ने यूज किया, इसने कुछ नहीं यूज किया, ये जस्ट सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 400 का डिस्काउंट है, बीइंग कैश दोनों यूज कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट भी सेम प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा, जिस प्रोपोर्शन में कैश बांटा। तो कैश इक्वली बांटा तो डिस्काउंट भी इक्वली आ जाएगा। सो डिस्काउंट 400 है, इक्वली बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 एंड 200। इस तरह से इन्होंने अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर ली। अब अब व्हाट विल हैपन ऑन ड्यू डेट? बैंक जाएगी इसके पास, ड्रॉवी के पास पैसा मांगने, इसके नाम से बिल है तो इसके पास पैसा मांगने जाएगी, है ना। ऑलरेडी जो 20,000 का बिल है, बैंक 20,000 मांगेगी ड्रॉवी के पास से। इट विल गो टू द दिस थिंग, ये जाएंगे बिल लेके इसके पास, कभी ड्यू डेट के दिन। ओके, ये ड्यू डेट के दिन जाएंगे इसके पास पैसा मांगने, बिल लेके। ओके, अब ये बिल है टोटल 20,000 का, जिसमें से ऑलरेडी 10,000 इसने यूज किया। वाई ऐसे 10,000, 9,800 प्लस डिस्काउंट, दोनों मिला के 10,000। ओके, बाकी का 10,000 ड्रॉवर ने यूज किया। तो अभी ड्रॉवर को ड्यू डेट के पहले इसको कितना अमाउंट देना है? वेरी सिंपल, ही हैज टू गिव बिफोर ड्यू डेट कैश ऑफ रुपीज 10,000। कितना कैश देना है? जो उसके हिस्से में उसने लिया था, उसने लिया था 9,800, बट डिस्काउंट को भी आपको यहाँ पे जोड़ना है। ओके, एंड दिस ही विल डू बिफोर ड्यू डेट, दिस विल डू बिफोर ड्यू डेट। ओके, फिर 10,000 इसका पहले से इसके पास है और 10,000 ड्रॉवर ने दे दिया। तो जब ड्यू डेट के दिन, जब बैंक आएगी, ड्यू डेट के दिन बैंक आएगी बिल लेके, बिल कितने का है? 20,000 का। उस दिन ये जो है ड्रॉवी, वो क्या करेगा? बैंक का बिल ऑनर करेगा ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। ओके, सो ही विल गिव कैश एंड दिस वे द अरेंजमेंट विल बी कैरिड। अब इसमें ये हो सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है, आपने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है तो, कि डिस्काउंट मतलब डिसऑनर वगैरह हो गया, कैश नहीं दे, तो वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। लेकिन ये होता है प्रॉपर अरेंजमेंट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई कैश दिया ही नहीं, या फिर एक दोनों में से एक के पास कैश नहीं है, तो वहां पे और अरेंजमेंट हो सकते हैं, बट दैट विल सी लेटर ऑन। ओके, नाउ फिलहाल मैं सिंपल तरीके से, किस तरीके से होते हैं, कितने तरीके के अकोमोडेशन होते हैं उतने बता रहा हूँ। तो पहला देखा हम लोग ने, जहाँ पे there is only one bill for accommodation of one party only, one party needs the cash। okay, पूरा डिस्काउंटिंग इसका हो गया एक्सपेंसेस। यहाँ पे था एक ही बिल दो पार्टियों के लिए। ओके, नाउ थर्ड एंड द लास्ट वन आई एम सेइंग टू यू, थर्ड, थर्ड पॉसिबिलिटी। ओके, two bills are drawn, two bills drawn by sorry, two bills drawn for the benefits of both the parties। okay, two bills are drawn for two bills, huh? So here each party will be drawing the bill, benefit of both the parties। वेरी सिंपल इट इज। एंड इसमें जनरली क्या होता है कि दोनों बिल सेम अमाउंट के होते हैं। समझो दो अननोन पर्सन है, दोनों को रिस्क नहीं लेना है, तो दोनों क्या करते हैं, भाई तुझे भी पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है, लेट अस डू वन थिंग। सपोज देयर इज वन पार्टी, सो देयर विल बी टू बिल्स विच विल बी ड्रॉन बाय बोथ द पार्टीज। एक बिल एक पार्टी ड्रॉ करेगी, दूसरा बिल दूसरी पार्टी ड्रॉ करेगी। ओके, सो हियर वन सेकेंड, two parties are there। okay,
बोथ आर इन नीड ऑफ कैश। तो पहले ये लोग क्या करते हैं, लेट अस से ये बन जाता है ड्रॉवर, इस केस में ये कौन बन जाता है, ड्रॉवर। ही ड्रॉ वन बिल, ओके, एंड ही बिकम्स ड्रॉवी। वेरी सिंपल इट इज। ये बन जाता है ड्रॉ, एंड ही गिव्स द बिल, ओके। एज वी नो, ये बिल लेके वो कहाँ पे जाएगा बोलो, बैंक के पास। He'll go to the bank, he'll go to the bank, okay, he'll give that bill to the bank, बैंक बदले में क्या देगी, कैश, ओके। बैंक बदले में देगी कैश, साथ में डिस्काउंट भी आएगा, एज वी नो, ओके। और ये हो गया अरेंजमेंट। उसी दिन, जिस दिन ये अरेंजमेंट हो गया, उसी दिन वापस और एक अरेंजमेंट, ये लोग सेम पार्टी, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके, हमने उनको नाम दे दिया समझने के लिए। ये दो पार्टी अलग नहीं है, सेम पार्टी है। वापस दोबारा से ये लोग क्या करते हैं, सॉरी, ओके, सेम पार्टीज व्हाट दे विल डू, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेम पार्टीज, ओके। ये है ए और ये है बी, दोनों सेम पार्टी। पहले कौन था, ए ड्रॉवर था, अभी बी बोलता है मैं ड्रॉवर बनूंगा, आई विल ड्रॉ द बिल, एंड तू बन जा ड्रॉवी, ओके। सो योर ए ने, सॉरी, बी ने बिल ड्रॉ किया और वो बिल एक्सेप्ट करके ए ने बी को दे दिया, एंड लाइक ए डिड, बी क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा, वो बिल लेके, ओके, बैंक को बिल दे देगा, he will give bill to the bank and will receive the cash, okay. So he'll give bill to the bank and he will receive the cash from the bank, and as we know, अगर कैश है तो उसके साथ साथ क्या आएगा, डिस्काउंट भी आएगा, थोड़ा पैसा डिडक्ट कर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले केस में क्या हुआ था, ये केस और एक केस डिफरेंट कैसे देखते हैं। यहाँ पे एक ही पर्सन को जरूरत थी, उसने कैश रिसीव किया, 3 महीने तक कैश यूज किया, फिर 3 महीने ड्यू डेट के जस्ट बिफोर उसने क्या किया, जो पैसा यूज किया, अभी ऑनर तो करना है बिल, तो ड्रॉवी को देना पड़ रहा है। यहाँ पे ये ड्रॉवी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेट्स राइट दैट ड्रॉवर, ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी है अपना, ठीक है। यहाँ पे ये अरेंजमेंट हुआ था, बट लेट अस से मैं यहाँ पे अमाउंट भी लिख देता हूँ आपके लिए, कि यहाँ पे ये बिल है 1000 का, छोटा सा अमाउंट लिख देता हूँ, ये भी बिल है 1000 का। अब आप जरा अकल लगाइए, ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास बैंक जाएगी, ओके, बिल लेके, ड्यू डेट के, अच्छा बिल कितने का है, 1000 रुपीज का, बिल लेके बैंक जा रही है, बिल कितने का है, 1000, मतलब इसको कितना पे करना है, हाउ मच हैज टू पे, 1000। अब ये 1000 ये अपने पॉकेट से भरेगा या ड्रॉवर से मांगेगा, सोचो जरा, ये 1000 ये अपने पॉकेट से भरेगा, क्यों, ड्रॉवर से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इसने ए ने बी के ऊपर 1000 का बिल ड्रॉ किया, एट द सेम टाइम उसने भी 1000 का बिल ड्रॉ किया, जो सेम टाइम पे जब उसका बिल ऑनर होगा तब इसका भी बिल ऑनर होने वाला है। और यहाँ पे ये जो बिल है, जब ये बैंक जाएगी इसके पास बिल लेके, तो ये जो बिल है वो ए ऑनर करेगा, तभी ए पैसा नहीं मांग सकता है, ए पैसा नहीं मांग सकता है, क्यों नहीं मांग सकता है, क्योंकि सेम केस हो चुका है, तो यहाँ पे रेमिटेंस नहीं होता है, दोनों ने एक दूसरे के लिए बिल ए कर दिया, फिर फाइनली अपना अपना बिल ऑनर कर दिया, दैट्स इट। ऐसा ये लोग अरेंजमेंट कर लेते, ये 1000 रुपीज जो है, ये 1000 रुपीज ए अपने पॉकेट से देगा, तो यहाँ पे बी ने 1000 दिया, यहाँ पे ए ने 1000 दिया, अरेंजमेंट इज सिंपल। तो यहाँ पे दो बिल होता है, एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल, ये अगर क्वेश्चन आता है, और जनरली यहाँ पे दोनों बिल के जो अमाउंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये है तीन तरीके
जिससे एकोमोडेशन यूज किया जा सकता है। तो दिस इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बिल एक अरेंजमेंट है, पैसों की जरूरत है एक या दो पार्टी को, तो आपस में वो अरेंजमेंट कर लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं, ताकि वो बैंक से पैसा ले सके। एंड एक्चुअली बिल इतने सिमिलर होते हैं, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल, कि बैंक उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और बैंक उनको डिस्काउंटिंग करा के ले लेता है। बट वी नो कि एकोमोडेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं है। याद रखना, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। अगर डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर हो गया, ड्रॉवर को ही पूरा देखना, वैसे भी उसके ही बेनिफिट के लिए तो। और बहुत सारी और चीजें भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहे हैं, लेकिन वो हम लोग क्वेश्चन में दे सकते हैं। बट बेसिकली एकोमोडेशन बिल ये तीन तरीके से होता है। ओके, थैंक यू।